ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। लास्टली हम लोग स्ट्रक्चर चैप्टर लर्न कर रहे थे। ओके, वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके गाइस, वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, बिकॉज अभी 2-4 स्टूडेंट और बाकी है। किंजल नहीं, सॉरी प्रीति, एक बार सचिन लोग को बोलो वो लोग ज्वाइन करें। Sir. सचिन ने आपका क्रिएट नहीं किया, उसको एक बार बोल देना। ठीक, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो लास्टली हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, एंड द स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डिफाइन योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक्चुअली स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट user defined data type. That's the first thing. And the second thing is how to access the data member of the structure. How to access? So there is a dot operator. Dot operator means what? It is used to. It's an operator to access the data member of the structure by using the structure variable. Okay. So छोटा सा revision कर लेते हैं तब तक बाकी student join कर ले. So if I want to create a structure, अगर मुझे खुद का एक structure create करना है, then what's the thing? How to create the structure, guys? You have to simply use a struct keyword. You have to use a struct keyword with the name of the structure. And the structure must be terminated with semicolon. The structure must be terminated with the semicolon. Now, inside that, you can just declare a group of members like integer ID, string name, and blah blah like that. Now, whenever you want to create a variable of the structure, what I have to write down? If I want to create a variable means what? Used to represent the data. So if I want to represent a 5 employees or 3 employees, then what I require? I require to declare 3 employee variables. So this even, after that, let me declare separately. So this E1, E2, and E3 are the variables of the type structure. Now string is not the data type actually. Write on like this. Is it okay? So even in E2, even E2 and E3 are the structure variable, but what about this name and ID? Name or ID क्या है? They are the data members. They are the elements or they are the not the data members. Okay, तो इन सबको क्या बोला जाएगा? Data members जो highlighted है. और E1, E2, E3 को क्या बोला जाता है? These are known as the structure variable. Okay. Now E1 के अंदर क्या क्या चीज बनी होगी? So what is the data type of E1? E1 is the type of employee. तो E1 के अंदर ID और name होगा. E2 के अंदर भी ID और name होगा. E3 के अंदर भी ID और name होगा. So if you want to access the ID of E1, you have to just write down E1.id. In the same way, अगर मुझे E2 का ID चाहिए, E3 का ID चाहिए, so this is the way. Okay. Now if you want to print this, it's like a normal integer. हम लोग सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए मैंने नेम को सेट नहीं किया. ठीक है, मैंने नेम को सेट नहीं किया. So now let me just write up E1.id, E2.id and blah blah. So that is the thing. I hope सबको क्लियर है ये चीज. तो ये क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर क्या, व्हाट इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल? स्ट्रक्चर वेरिएबल किसको बोलते हैं? So right now in this example, E1, E2, E3 are the structure variable, and what about the members? ID and name are the structure members. Is it okay, guys? Clear? Everyone? कल्याणी, किंजल, Yes, sir. ओके, सबका क्लियर है ना? ओके, सो हम लोगों ने लास्ट में क्या लर्न किया था? हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू कंपेयर देम, एंड टाइम नाम का एक लास्टली स्ट्रक्चर लिया था जिसमें हमने एडिशन किया था. तो हम लोगों ने वर्क कैसे किया था? ये लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर था टाइम एंड हैविंग 3 डेटा मेंबर्स. हम लोगों ने ये क्लास भी कंप्लीट किया था. इंटीजर एचएमएस आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, सेपरेट लाइन में भी डेटा मेंबर्स को नोट डाउन करा सकते हो. Now guys, what is our next requirement? I want to create 3 variables. तो हम लोगों ने क्या लिखा था? struct time t1, t2 and t3. तीनों का वैल्यू चाहिए था? नहीं, दो का वैल्यू चाहिए था. What was the definition of the program? Write a program for the addition of the structure. Sorry, write a program for the addition of the time variables. Write a program for the addition of 2 time variables. तो 2 time variable का addition करना है. At that time we require 3 time variables.
तो मुझे 2 टाइम वैल्यू गेट करनी पड़ेगी एंड द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्कैनएफ पर्सनलिटी बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम वेरिएबल कौन था, इट इज t1। तो जब मैं t1 को गेट करूं तो t1 इज a type of time and time having 3 data, so I have to get HMS for the t1, so I have to write down t1.h and t1.m and t1.s. The same way, same procedure we have to apply for the t2. So guys, right now I have 2 time variables. Okay. Now I have 2 time variables. So this is that was the t1, and right now I want to show the data in t2. Now afterwards I want to just add both of these. So what we did in the last lecture, t3.h is equals to t1.h plus t2.h. I hope आपको याद है ये सब चीजें. And after that mm का addition, ss का addition, and we'll store the answer in hours and minutes and seconds. After that you have to just display t3, but t3 having 3 data members, so we have to write down personality 3 times. So t3.h, t3.m and t3.ss. So I hope ये clear था सबको. Okay, now guys, now next, यहाँ तक सबको clear है? Is it okay guys? So it's a normal structure, like मतलब it's like a normal variable. आपको normal इसको एक बस group बनाना है, एक group create करना है, after that variables बनाने. अब जैसे t1 बनाए तो t1 के अंदर HMS बनेगा. So you have to use percentage d, percentage s, percentage f according to the data type of the data members. Now guys, my requirement is like I have an structure type. मुझे एक simple सी चीज create करनी है. I want to create, sorry, structure employee I want to create, and 5 employees data I want to get and I want to display. I hope आपको समझ में आ रहा है. What is my requirement? My requirement is I want to create a group of 5 employees. मुझे 5 employee का group चाहिए, and after that next requirement क्या है guys? What is the next requirement? I want to get all these employees and I want to display them. So 5 employee. So first of all, what is our requirement? We need to create an employee object. Sorry, we need to create an employee structure. जैसे मैं आपको बोलूँ 5 employee चाहिए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, मुझे पहले employee नाम का data type बनाना पड़ेगा. So let me create employee. Inside that I want to create only 2 things I want to declare. The first one is name and ID. Name and ID. तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? Next requirement is क्या करना था सचिन? 5 एम्प्लॉय चाहिए, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? struct tmp, हाँ, Struct tmp. फिर 5 वेरिएबल बना देंगे. 5 will. Can I do this? Can I create an array? Yes sir. So that is the next topic, array of the structure variable. Array of structure variables. काफी लोग इसको array of structure भी बोलते हैं. Okay, so that's our next requirement. I hope आपको समझ में आया. Struct 7.c. Okay, now what is our requirement? हम लोग को जब भी array पे काम करना हो, मैं अभी 5 तो नहीं बना रहा, but I want to work with 3 employees. Okay, so now Kinjal and Divya, I want to get the value. मुझे 5 employee, otherwise 3 employee का data चाहिए. Enter name and ID. तो मैं क्या लिखूं? 3 एम्प्लॉय मतलब कौन कौन से एम्प्लॉय है यहाँ पे? आप वेरिएबल्स के नाम बता पाओगे? Yes. E0, Yeah. E1. Yeah. One thing you have to modify. It's E of 0. E of 0 we have to say. Okay. E of 0, E of 1 and E of 2. Very good. हाँ, अभी मुझे डेटा गेट करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? Scan. For loop we have to write down ना? Yes. तो for loop तो लिखना ही पड़ेगा, otherwise it makes an issue. ठीक है, अदरवाइज हम लोग को 3 बार scanf लिखना पड़ेगा. एक्चुअली इश्यू तो नहीं होगा कुछ. Now I want to get the name and I want to get the ID. So अब क्या लिखूं guys? Yes. E of I dot Yes. ID. E of I, but before that we have to just write out ampersand. E of I dot name and E name. of I dot ID. Sorry, I just forgot the ampersand. So that's that.
ओके, सो दैट्स अ सिंपल थिंग। हम लोगों ने स्कैनफ किया तो हम लोग को नाम भी चाहिए था और आईडी भी चाहिए था, तो हम लोगों ने नॉर्मल एरे भी यूज किया और स्ट्रक्चर भी यूज किया। इट्स क्वाइट इजी आई थिंक। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर आपको एरे और स्ट्रक्चर का आइडिया क्लियर है देन ये समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटफ। मुझे डेटा प्रिंट करना था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू प्रिंट आईडी, देन आई वांट टू प्रिंट द नेम। सो e of I dot id, e of I dot name, that's it. Is it clear guys? इसमें किसी को प्रॉब्लम? Yes, sir. तो मैं रन कर रहा हूँ गाइस। No. मुझे 3 एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना था ना, आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले। सो दिस इज माय फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय एंड दिस इज थर्ड एम्प्लॉय। तो हियर इट इज 101 ट्रिपल ए, बिकॉज़ मैंने प्रिंट करने के टाइम पहले आईडी रखा था। तो 101 ट्रिपल ए, 102 ट्रिपल बी, 103 ट्रिपल सी। ओके, इज इट क्लियर? Now the next my requirement is that's an array of structure actually। आप कोई भी टाइप का array बना सकते हो स्ट्रक्चर का। So it's a normal integer type of array। आप बोल सकते हो कि integer का जैसे array बना है, वैसे हमने स्ट्रक्चर का array बनाया। It's not a big deal। जैसे integer का array बनाते थे और उसको वर्क करते थे, तो वैसे स्ट्रक्चर का array बनाया। बट जब भी स्ट्रक्चर के साथ वर्क करते हैं, हम लोग को डॉट ऑपरेटर को बोला जाता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और उसके डेटा मेंबर को भी साथ में कंसीडर करते हैं। नाउ गाइस, माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए था एंड द स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट। तो मुझे स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर चाहिए। इसके अंदर स्टूडेंट का आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए एंड उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो कैसे लिखो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? यस, मार्क का एरे बना देंगे। हाँ, मार्क ऐसे हम लिख सकते हैं M1 M2 M3 लिख सकते हैं, बट अगर आप मार्क्स का एरे बना दो देन इट्स बेटर। ठीक है, सो ये कौन सी चीज है? एरे विद इन स्ट्रक्चर। ये कौन सी चीज हो गई? एरे विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे विद इन स्ट्रक्चर। सो लेट मी जस्ट सेव दिस struct8.c। तो गाइस, मुझे एक स्टूडेंट के लिए डेटा गेट करना है, डिस्प्ले करना है। तो सर कैन यू हेल्प मी? I want to get the data for a single student, and then I want to display. Yes. हाँ सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, એક સ્ટુડન્ટનો ડેટા ગેટ કરવાનો છે અને ડિસ્પ્લે કરવાનો છે। हाँ जी। हाँ जी। તો ગેટ Sorry. શું કહે પેલો ફોર લૂપનો યુઝ કરવો પડશે। क्या लिखो? મલ્ટિપલ बोलो, वो लिख के जाओ। हाँ, ફોર यहाँ पे लिखो या क्लियर स्क्रीन के बाद? મેઇનમાં એટલે हाँ लिखो, आप बोलो क्लियर स्क्रीन के बाद लिखो। और हाँ हाँ, और કાઉન્ટમાં हाँ I हाँ आई ઇઝ ઇક્વલ ટુ નહીં ખોટું ના સર રહેવા દો, ખોટું કરું છું, ખોટું કરું એ યાર કેવી રીતે કરવાનું? તો 2 મિનિટ लास्ट लेक्चर अटेंड किया था सर आपने? ના સર। वीडियो देखा था? હા ના સર, બાકી છે। મારી એક્ઝામ ને એવું હતું ને એટલે એનું પ્રિપરેશન કરતો હતો। कल संडे था सर? હા સર, કાલે જ હતી એક્ઝામ। हाँ, मतलब कल संडे कितने बजे एग्जाम था? સર 4 વાગે, हाँ, उसके बाद कब खत्म हुआ? 5 વાગે। हाँ, 5 बजे से अभी 11 बज रहे। સોરી સર, જોવાનો। किंजल, किंजल, हाँ जी, मुझे एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा गेट करना है और डिस्प्ले। क्या लिखो? यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने क्लास लिखा। हाँ किंजल। प्रीति, जागृति, Struct student, struct
कल्याणी को चांस देते हैं। यस कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी प्रेजेंट है गाइस? Yes, sir. हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चर स्टूडेंट हो गए, उसमें तीन मतलब जितने स्टूडेंट लेने होंगे उस उतने वेरिएबल। एक ही स्टूडेंट चाहिए, मैंने बना दिया। ठीक है, अभी बोलते जाओ कल्याणी। प्रीति, सर फिर फोर लो। और लोग किस चीज की? हाँ किंजल, सॉरी रश्मि, दिव्या, सचिन, जागृति, सर स्कैनएफ एमएफ, स्कैनएफ परसेंटेज डी because I want to get the ID first. Percentage D ampersand S dot ID. परसेंटेज दे मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। परसेंटेज सर। यस सर। S dot, हाँ अभी इसके लिए फोर लूप लगाना अब पड़ेगा। फोर लूप लगेगा, और वो फोर लूप कहाँ से कहाँ तक होगा गाइस? तो अंदर क्या लिखेंगे? हाँ बस परसेंटेज D, स्कैनएफ हाँ क्या लिखूं? यस यस डॉट मार्क्स आई। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हम लोग को क्या लिखना है गाइस? देखो S डॉट, अब मार्क्स का एरे था तो मार्क्स ऑफ आई, you have to write down S dot marks of I। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है, किसी मतलब किस तरीके से गेट किया? मेरे पास स्ट्रक्चर नाम का कोई, सॉरी स्टूडेंट टाइप का जब मैंने एक वेरिएबल बनाया S, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज डेवलप हो गई? फर्स्टली आईडी क्रिएट हुआ, आफ्टर दैट नेम क्रिएट हुआ, आफ्टर दैट मार्क्स क्रिएट हुआ। तो इफ यू वांट टू एक्सेस दिस आईडी, अगर आप इस आईडी को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है? scanf percentage D and S dot ID। जब आप नाम को एक्सेस करना चाहते हो तो S dot name, and whenever you want to access this marks, अगर आप मार्क्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको लूप एग्जीक्यूट करनी है। कहाँ से कहाँ तक की लूप लगेगी? तो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? इट्स a size of 3, it has 3 elements, so 0 से 2 तक का लूप चलेगा। ओके, सो 0 से 2 तक का लूप चलेगा। हियर इट इज। So is this clear? ये आई थिंक समझ में आया होगा। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? वी वांट टू प्रिंट दिस। सो मुझे प्रिंट करना था तो मैं सिर्फ मैसेज दे देता हूँ, आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज percentage D and we have to just write down S dot ID। Okay, so that's the ID, S dot ID। Now after that I want to display name of the student, so name is equals to percentage S dot name, and after that I want to display marks। So marks array था, so we have to use an array, we have to use a loop। तो हम लोग को सिंपल सी चीज लिखनी है यहाँ पे, एक लूप चलाने के बाद परसेंटेज D स्लैश टी सिर्फ सेपरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ कि एक गैप रहेगा सबके लिए, एंड S डॉट मार्क्स ऑफ I we have to write down। Spelling mistake is there, it's a marks of I। So let's run this। तो पहले मुझे ID इनपुट करना था, देन मुझे नाम इनपुट करना था। नाउ लेट मी एंटर द मार्क्स। सो मार्क्स में कुछ लोचा आया, देखो ठीक है, ID वाज राइट, नेम इज राइट, मार्क्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई। रीजन इज हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड करना भूल गए थे। मार्क्स स्कैनएफ के साथ एम्परसेंड लगता है ना गाइस, तो यहाँ पे हम लोग भूल चुके थे। सो नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन 101 पहले 10 20 एंड 30। सो हियर इट इज। ठीक है, एक्सलेशन बाकी है ट्रिपल ए के बाद, अदरवाइज वो सेपरेट लाइन में आ ही जाता है, वो आप समझ सकते। ठीक है, यहाँ पे एक्सलेशन कर देते हैं तो सब डेटा सेपरेट लाइन में आ जाता है। तो इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया ये? नाउ अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस क्लियर? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? ना सर। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज सिंपल। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि आई वांट टू गेट एन एरे ऑफ 5 स्टूडेंट्स, सॉरी आई वांट टू गेट द डिटेल्स फॉर 5 स्टूडेंट्स, बट वो डिटेल्स के अंदर दिया क्या होना चाहिए पता? आईडी चाहिए, नाम चाहिए और मार्क्स का एरे चाहिए। तो मुझे 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, और मुझे प्रिंट क्या करना है पता है? मुझे उसका आईडी प्रिंट करना है, आई वांट टू डिस्प्ले द नेम। मुझे उसका आईडी प्रिंट करना है, आई वांट टू डिस्प्ले द नेम, एंड सभी मार्क्स का समेशन चाहिए। कंसीडर कि ये जो मार्क्स थे वो आपके फर्स्ट मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म और थर्ड मिड टर्म के मार्क्स है, तो मुझे उनका सम प्रिंट करना है। एवरेज भी प्रिंट कर सकते हैं, सम भी प्रिंट कर सकते हैं, ब्ला ब्ला।
My requirement समझो. What is our requirement? First of all, try to understand the requirement. What is our requirement, guys? Want to get 4 students. चलो ऐसा मान लेते हैं. 4 students data and display ID, name and sum of marks. ऐसा कुछ चाहिए. So दिव्या एंड रश्मि आपको ये डेवलप कराना है. स्टार्ट कर दीजिए प्लीज. हाँ, क्या लिखूं? पहले तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट Sorry, चलो inside that int id फिर ID. कैरेक्टर नेम. वेरी गुड. चलो एक हमने एक यहाँ पे एक एरे बना दिया. दैट इज फॉर. नाम की जगह कुछ और लिख सकता हूँ क्या? कैरेक्टर एन लिख सकता हूँ, कुछ भी. यहाँ पे p लिख सकता हूँ. हाँ हाँ, इट्स इन वेरिएबल नेम, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. यस, नेक्स्ट. समेशन के इंटीजर मार्क. पहले तो 3 मार्क्स चाहिए. और गाइस सभी स्टूडेंट के लिए मुझे सम चाहिए था, तो वहीं पे सम क्रिएट कर देता. ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सम करना था ना. जैसे मेरे पास 5 स्टूडेंट है, तो पांचों का सम स्टोर होगा तो कितनी वैल्यूज होगी? 5 सम वेरिएबल लेने पड़ेंगे ना. अगर मान लो 10 स्टूडेंट होते तो सभी के मार्क्स के समेशन करने तो मुझे कितने सम वेरिएबल्स चाहिए? 10. तो हम लोग क्या करेंगे पता, स्टूडेंट के अंदर ही डेवलप कर लेंगे. अब जैसे ही कोई भी स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सम क्रिएट हो जाएगा. तो सेपरेटली सम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सेपरेटली सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप ये समझ में आया होगा. ठीक है. और बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू क्या होती है? 0. बी केयरफुल. हाँ, यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं कर सकते. हमने किया है वैल्यू सेट. नाउ लेट वी रन. इट हैज एन एरर. व्हाट इज द एरर? द डिक्लेरेशन मिसिंग. बिकॉज जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ना, तब आप डेटा टाइप बना रहे हो. गाइस डेटा टाइप बना रहे हो, इसका मेमोरी एलोकेशन कब होगा? ये जो अंदर लिखा ना, इंटीजर, आईडी, नेम, मार्क्स, सम, इन सब का मेमोरी एलोकेशन कब होगा? जब उसका पहला वेरिएबल बनेगा. वेरिएबल मींस व्हाट? जैसे वो स्टूडेंट लिखते थे ना, स्टूडेंट s1, तो अब वेरिएबल बना. समझ में आ रहा है? अब उसका वेरिएबल क्रिएट हुआ. किसका? जो हमने डेटा टाइप क्रिएट किया था. व्हाट इज द डेटा टाइप? द नेम ऑफ द डेटा टाइप स्टूडेंट. तो अब उसका वेरिएबल बन रहा है. मतलब अब ये s1 के अंदर ये सब के सब डेटा मेंबर्स क्रिएट होंगे. अप टू दिस ये कोई डेटा मेंबर थे ही नहीं. ऐसा ही मान के चलो, ये कुछ है ही नहीं. अप टू दिस ऐसा कुछ था ही नहीं. ओके, सो अगर वो डेटा मेंबर्स थे ही नहीं, उनका मेमोरी एलोकेशन अवेलेबल ही नहीं था, so how you can store the zero over there? तो अगर हम जीरो स्टोर कैसे करें? So that's not possible. देखो एरर दे रहा है. That's not possible. Is it okay? So be careful guys. Guys be careful. यहाँ पे by default वैल्यू सेट नहीं कर सकते. ओके, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर में वैल्यू सेट नहीं कर सकते. So is this clear? We cannot set any value to the structure data member because memory will be allocated at the time of declaration of structure variable. At the time of structure variable declaration, memory कब allocate होगी? स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने पे. ओके, जैसे ये s1 क्रिएट किया, तब तो मेमोरी एलोकेशन होगा. तो उससे पहले आप वैल्यू स्टोर कैसे कर पाओगे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. ओके, ठीक है. नाउ अब क्या करें दिव्या? सर 4 स्टूडेंट है तो चाहिए. स्टूडेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एरे बना देते हैं. बोलते जाइए. स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस ले एस ऑफ 3 4 ना, 4 चाहिए ना. हाँ हाँ, अभी भी आप वहीं पे लोचे में पड़े हो कि 0 से स्टार्ट होगा, है ना? मतलब मुझे लगा सर स्टूडेंट का भी एरे बनाना. स्टूडेंट का तो एरे ही easy. बनाया ना. स्टूडेंट का एरे ही है, ये एरे तो है. ओके. 4 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका पहला वेरिएबल का नाम क्या होगा दिव्या? एस ऑफ 1. रश्मि, फर्स्ट स्टूडेंट का एस ऑफ हाँ जी, 0. एस ऑफ 0. सेकंड का नाम एस ऑफ 1. तो सर स्टार्ट स्टूडेंट है तो अब एस ऑफ 3. वही तो क्वेश्चन है सचिन. यहाँ पे दिव्या का क्वेश्चन है कि 4 स्टूडेंट है तो पहला स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होता है. मतलब पहले स्टूडेंट का नाम एस ऑफ 0, सेकंड एस ऑफ 1, नेक्स्ट एस ऑफ 2, नेक्स्ट एस ऑफ 3. तो यहाँ 3 लिखे या 4 लिखे? तो इनिशियलाइज 4 करते सर. तो मैं 4 लिखा. 4. मतलब 4 सर. दिव्या ये साइज वो है. साइज दे रहा है सर, ये हाँ, देखिए. ये इंडेक्स वैल्यू नहीं है.
दिस इज द साइज के कितने स्टूडेंट चाहिए। बट जब आप यहाँ पे 4 लिखोगे ना तो कंप्यूटर 0 से 3 तक मेमोरी एलोकेशन करता है। Okay. समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ 10 Okay, लिखा sir. तो मेमोरी एलोकेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? 9. 0 to 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लिख देता ना तो मेमोरी एलोकेशन विल स्टार्ट विद 0 एंड अप टू 2। 0 1 एंड 2 सिर्फ 3 ही बनते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे डेटा चाहिए। यस दिव्या, Printf. बोलते जाओ, थोड़ा स्पीड में बोलो, मैं टाइप Enter the data. Enter the data. ठीक है, Scanner. कितना स्कैन है? रश्मि आपको भी बोला है साथ में। स्कैनर स्कैनर में सर Awesome. फॉर लूप लगाएंगे। बिकॉज वी हैव एन एरर। यस सर। ठीक है ना, अभी Hmm. एनएफ नहीं, ये मैसेज अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को पता चलता जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट के लिए डेटा चाहिए। मैं मैसेज अंदर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर डेटा फॉर पर्सन डी स्टूडेंट। ठीक है, पर्सन डी में मैं वैल्यू प्रिंट कर दूंगा i+1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i गाइस? इट इज स्टार्टिंग में क्या है i का वैल्यू? इट्स 0। मैसेज क्या आएगा? एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, देन i का वैल्यू नेक्स्ट टाइम सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट एंड एक्सेट्रा। ओके, और डेटा के ब्रैकेट में एक और चीज इनको बता देते हैं कि कौन से फॉर्मेट में हम गेट करते हैं। पहले आईडी चाहिए, देन नेम चाहिए, देन मार्क्स। अब आईडी गेट करने के लिए क्या लिखेंगे? %d वेरी गुड। एंड क्या लिखूं? and s dot mark s dot S.id. s of i dot id गाइस। s कैसे? इट्स एन एरे। s थोड़ी है, वो तो एरे है ना। तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को? s of i dot id। आफ्टर दैट नाम चाहिए तो %s। यस, कंटिन्यू। s of And S of I dot dot name. name। शाबाश, वेरी गुड। अब क्या लिखूं मैं? नाउ आई नीड मार्क्स। Marks. एक और 4 हाँ, वन मिनट, एक मिनट। एंटर प्लीज सब्जेक्ट्स मार्क्स। अब बोलिए। इसके अंदर एक और फॉर लूप और लूप एक और चाहिए, जिसको मैं 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाऊं? यस, 2 मतलब 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर 3 लिखना हो तो लेस देन 3। ओके, अब इसमें क्या लिखना है गाइस? स्कैनर कैन %d परसेंटेज थोड़ा फास्ट चलो। हाँ, एंड S of I marks I marks. s of i dot marks of j। क्योंकि मार्क्स का एरे है ना, मार्क्स का एरे है ना। समझ में आया ये? s of i क्यों? बिकॉज i का वैल्यू 0 होगा तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। बट फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कितने मार्क्स चाहिए मुझे? I need to get 3 मार्क्स। तो s of 0 में मार्क्स ऑफ 0, s of 0 में मार्क्स ऑफ 1 एंड s of 0 में मार्क्स ऑफ 2। s of 0 में मार्क्स ऑफ 0, s of 0 में मार्क्स ऑफ 1 एंड s of 0 में मार्क्स ऑफ 2। समझ में आया? जब i का वैल्यू 1 होगा, i का वैल्यू जब 1 होगा तब यहाँ पे क्या कंसीडर होगा? इट विल बी कंसीडर्ड एज s of 1। यहाँ पे कंसीडर होगा s of 1 बट मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए डेटा चाहिए। इज दिस क्लियर गाइस? ओके, एंड अब मुझे समेशन भी चाहिए था। सो व्हाट आई विल डू, मैं लूप के अंदर लिख रहा हूँ s of i डॉट सम इक्वल टू 0। s of i डॉट सम इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये जो सम नाम का वेरिएबल है ना, वो सभी वेरिएबल्स के अंदर है। जो सम नाम का वेरिएबल्स था, जो देखो मैं रिपीट करता हूँ, सम नाम का जो डेटा मेंबर है वो सभी वेरिएबल्स के अंदर है। सभी वेरिएबल्स मतलब कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? आई हैव एक्चुअली अ सिंगल वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज s। मेरे पास वैसे देखो तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज s। बट हमने एरे क्रिएट किया हुआ। एरे क्रिएट करने का मतलब 4 बंदे थे। तो s of 0 के अंदर भी सम है, s of 1 के अंदर भी सम है, s of 2 के अंदर भी सम है, s of 3 के अंदर भी सम है। तो मुझे सबको 0 सेट करना है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? वी नीड टू राइट 4 स्टेटमेंट्स। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपल लूप के अंदर लिख दिया s of i डॉट सम इक्वल टू 0। तो पहले i का वैल्यू 0 होगा तब सम की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी।
i की वैल्यू 1 होगा तब सेकंड वेरिएबल के लिए 1 का वैल्यू 0 सेट हो जाएगा एंड ऑनवर्ड सभी के लिए सम का वैल्यू क्या सेट हो जाएगा 0 एंड अब मुझे उनके अंदर मार्क्स का समेशन करना था सो हम लोग क्या लिखेंगे s of i dot sum is equals to s of i dot sum plus s of i dot marks of j ये आई होप समझ में आएगा ये समझ में आ रहा है Yes, sir. कि हम लोग एरे का सम करते थे तो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई लिखते थे तो यहाँ पे सभी मार्क्स का समेशन करके सम के अंदर स्टोर करना है बट हर एक स्टूडेंट के लिए मार्क्स अलग है सम नाम का वेरिएबल अलग है तो पहले स्टूडेंट के लिए सभी मार्क्स का समेशन पहले स्टूडेंट के सम में स्टोर होगा सेकंड स्टूडेंट के लिए सभी मार्क्स का समेशन सेकंड स्टूडेंट के सम में स्टोर होगा एंड ऑनवर्ड्स इट वर्क्स ओके गाइस इज इट डन ये सब समझ में आया ओके मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट करने के लिए भी मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी मुझे स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का हमारे पास 4 का है तो 0 से 3 तक का लूप चला लेते हैं एंड लेट मी जस्ट राइट डाउन परसेंटेज डी स्लैश टी परसेंटेज एस मतलब नाम प्रिंट करना है स्लैश टी परसेंटेज डी मतलब मुझे सम प्रिंट करना है आफ्टर दैट स्लैश तो मैं लिखूंगा s of i dot id s of i dot name and s of i dot sum okay that's that a simple thing is that okay now let me run this so up to this we have no errors now पहले मुझे क्या इनपुट करना है id then name and 3 सब्जेक्ट के मार्क्स तो मैं एकदम सीक्वेंस में 10 20 30 लिखते now second student 102 name is triple b now let me just write down some random data now sorry 103 triple c that's it now 104 triple d now you can write down something like this so guys just check this the first student having 60 marks because 10 20 30 was the first one आपको लाइन ऊपर से दिख रही हो तो एंटर 3 सब्जेक्ट्स ऊपर से सेकंड लाइन पहले 10 मार्क्स देन 20 मार्क्स देन 30 मार्क्स द समेशन इज 60 सेकंड स्टूडेंट के लिए 89 90 एंड 34 द समेशन इज 23 213 उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट में 3 4 एंड 1 तो 3 + 4 7 + 1 दैट्स 8 देन उसके बाद वाले स्टूडेंट में 9 78 एंड 34 आउटपुट इज लाइक अच्छा आउटपुट है अच्छे फॉर्मेट में आउटपुट है ठीक है सो अप टू दिस आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है guys is this clear Yes, sir. रश्मि दिव्या Yes, sir. ठीक है Yes, now sir. what is your next requirement मैं आज लेक्चर आगे नहीं बढ़ा रहा बिकॉज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस प्रोग्राम्स चाहिए मुझे कुछ सो नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज मुझे इसका एवरेज चाहिए मार्क्स का एवरेज चाहिए और एवरेज के हिसाब से जिसके हाईएस्ट मार्क्स है एवरेज के हिसाब से जिसके हाईएस्ट मार्क्स है मुझे उसको प्रिंट करना है आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ अदरवाइज मार्क्स में से मैक्सिमम चाहिए जैसे एरे में से मैक्सिमम निकाला था तो जिस बंदे के मार्क्स सबसे ज्यादा है आई वांट टू डिस्प्ले जिस बंदे के मार्क्स सबसे ज्यादा है मुझे उसको डिस्प्ले करना है दैट्स द फर्स्ट थिंग ठीक है उसके बाद मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए असेंडिंग मतलब अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स जैसे 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 मार्क्स डाउन होते जा रहे हैं मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसका पहला डेटा डिस्प्ले होना चाहिए जिसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है उसका सेकंड डेटा डिस्प्ले होना चाहिए जिसके थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है उसका थर्ड डेटा डिस्प्ले होना चाहिए आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है सो दैट इज एरे विद इन स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर दोनों का यूज करना है पहला प्रोग्राम डिस्प्ले द डेटा ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट मार्क डिस्प्ले द डेटा ऑफ द स्टूडेंट एवरेज छोड़ो समेशन पे काम करते हैं ओके एंड सेकंड मुझे मार्क्स वाइज असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे मार्क्स वाइज असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इज दिस क्लियर ओके एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे उसमें फंक्शन विद स्ट्रक्चर करने वाले हैं फंक्शन विद स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर तो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा टॉपिक है आई होप ये इजी लग रहा होगा आपको मैं आज आगे नहीं बढ़ा रहा बिकॉज ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है ऑफलाइन में होते तो हम लोग और आगे बढ़ जाते बट ऑनलाइन में मेरे ख्याल से प्रैक्टिस देनी पड़ेगी आपको तो कर लोगे ये प्रोग्राम गाइस मैक्सिमम सेकंड प्रोग्राम वो एक बार रिपीट कर दो ना शॉर्टिंग इट्स अ शॉर्टेड प्रोग्राम शॉर्टिंग हम लोगों ने किया था याद हो तो शॉर्टिंग यस किया सर था पर वो नाम की वाइज भी नाम हो वाइज भी जाएगी कर सकते हैं बट यहाँ मुझे मार्क्स वाइज करना है मतलब वो मार्क्स का सम हाँ जैसे अभी यहाँ पे आउटपुट आया ना तो अभी सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं 102. 102 तो पहला रिकॉर्ड कौन सा आना चाहिए 102
triple B and 213. Then 104 triple D 121. Then 101 triple S 60, and last one will be 103 triple C 8. Yes sir. Done? Yes sir. कुश भाई अब एग्जाम नहीं है ना? हाँ ओके सर, ठीक है, तो आज हो जाएगा, आज ही हो जाएगा. हाँ ओके ओके, सो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं सेशन. ओके गाइस.